Good morning, students. So here now the next chapter is demand. As far I have told you that this is one of the most important area of discussion in economics. Clear? So try to understand the concept of demand and all the relative aspects of the concept of demand in a better manner. I have just fragmented all the uh, whole concept of demand in three or four parts. So we are trying to understand the whole concept of demand and all the relative aspects of demand in different videos, step by step. So in this particular video, I am trying to cover the following topics. The first one is simply the meaning of demand. The second, we are trying to understand about the determinants, or we can say the factors of demand in both the case, individual demand and market demand, and the demand function. So these four areas we are trying to understand. Now let's start with the sole concept of demand. What is actually mean by demand? So here, as you could see on the screen, that the meaning of demand is written as demand of commodity refers to the quantity of commodity which a consumer is willing to buy at a given price and time. Okay, so let me tell you uh, two or three concepts more before coming to the actual explanation of the demand, because in order to understand the exact meaning of demand, you must know about these synonyms or the few very closely related terms which many of the time we get confused in order to differentiate in between these terms. So let me give you some brief idea about these terms so that you could easily differentiate between the actual concept of demand. Clear? So here uh, in this video actually I haven't include those small terms because I have send you these clicks of that particular definitions of that particular small terms. So I couldn't find it necessary to include it here. Okay, so fine. Okay, uh, let's start with the concept of uh, three terms. First one is desire, second one is want, and the third one is demand. So what is actually mean by desire? Clear? So desire means merely a wish to have a commodity. Like suppose uh, if a poor person is having a desire for have a car with just rupees 200 in his pocket. So desire is just a wish to possess something. So is it possible? So is it possible for a poor man to afford a car just by paying rupees 200? Is it not possible? Okay. So it is simply a desire. But in order to afford a car, uh, a man has to pay. A man has to pay uh, a specific amount. Okay. So, so सिंपली डिजायर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब सिंपली ये है, अगर आप कहते कि मेरी डिमांड है कि मैं कार खरीदूं, और एक कोई कहता है कि मेरी डिजायर है कि मैं कार खरीदूं, और एक कोई कहता है कि मेरी वांट है कि मैं कार खरीदूं, तो इन तीनों चीजों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, तो डिफरेंस इसमें मैंने आपको डिजायर के बारे में बता दिया। डिजायर का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज की ख्वाहिश करना। ठीक है, अब वो ख्वाहिश पूरी करने की क्षमता आप में है या नहीं है, ये एक
अलग मैटर है, अलग इशू है। ठीक है, ये एक अलग पॉइंट है जो आपको दूसरे कॉन्सेप्ट से डिफरेंट करता है इसको। ओके, सो now the next point is want. What is mean by want? Want means, want is that desire which is backed by the ability and willingness to satisfy it. Want जो होता है वो डिजायर का एक अपर लेवल है, मतलब कि बैक्ड बाय का मतलब ये है कि वांट का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं तो आप उसको अफोर्ड करने की एबिलिटी रखते हैं। क्लियर? सो एवरी डिजायर इज नॉट अ वांट। सभी डिजायर्स को हम वांट नहीं कर सकते। ये सारी इच्छाएं जो है वो वांट्स नहीं हो सकती, क्योंकि डिजायर का सिंपल मतलब सिर्फ ख्वाहिश है, विश है। ठीक है, लेकिन वो वांट नहीं हो सकती। लेकिन desire can become a want if the person is in position to satisfy it. desire want बन सकती है, कब बन सकती है? जब आपकी एबिलिटी हो कि आप उस चीज को अफोर्ड कर सके, खरीद सके, यानी कि आपके पास पैसे हो, तभी आप अपने वांट को पूरा कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, if the poor person wins a lottery and now he has enough money to buy a car, then his desire for car will now termed as want. पहले उस आदमी के पास 200 रुपये थे सिर्फ जेब में, और वो ख्वाहिश करता था कि मैं 200 रुपये में कार खरीद लूंगा। तो ये पॉसिबल तो नहीं है। इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? बट अब अचानक से उस आदमी की लॉटरी लग जाती है। ठीक है, तो अब उसकी जो डिजायर थी वो वांट में तब्दील हो सकती है अगर वो चाहे तो, कि उसके पास अब इतने पैसे हैं कि वो कार खरीद सकता है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन, अब उसका स्टेटस ऐसा, मतलब वांट का मतलब कि आपकी एबिलिटी ऐसी हो जाए कि आप वो काम कर सके, आपकी पोजीशन ऐसी हो जाए। क्लियर? Now finally come to the concept of demand. So demand is an extension to want as it has some more characteristics also. ठीक है, तो डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड जो है वो वांट का एक्सटेंशन है। यानी वांट के बारे में हमने आपको बता दिया। वांट वो चीज़ होती है कि आप किसी भी चीज़ की वांट तब करते हैं जब आप कैपेबल हैं आप उस चीज़ को अवेल करने के लिए, है ना? अब डिमांड जो है वो उसका और एक्सटेंशन वर्जन है, उसका और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वांट का। वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट कैसे है? वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऐसे है कि डिमांड की जब हम बात करते हैं तो डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। पहला पॉइंट। ठीक है, डिमांड को हमेशा जो है वो प्राइस के रेफरेंस में देखा जाता है। भाई मैंने किसी चीज़ की डिमांड में कब करूँगा? पहले मैं उस चीज़ की प्राइस देखूंगा, उसके बाद मैं उसकी डिमांड करूँगा। ठीक है, अब कार मुझे खरीदनी है तो मैं अपना बजट देखूंगा, और अगर मेरा बजट मेरी जो कार मुझे पसंद है अगर वो कार मेरे बजट के अंदर आती है तब तो मैं उसको उसकी डिमांड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज डिमांड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसके बारे में भी हम और आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? So finally, the demand definition of demand highlight four essential element of demand. तो बेसिकली अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड जो है वो चार एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से चार एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है वो? पहला एलिमेंट है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है विलिंगनेस टू बाय, थर्ड इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड फोर्थ वन इज पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी हमने इसलिए कहा कि भाई आप डिमांड अगर करते हैं तो आप उसमें क्वांटिटी भी मेंशन करते हैं ना, कि मुझे इतनी क्वांटिटी में ये सामान चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, चार चाहिए, पांच चाहिए। क्लियर? सेकंड, विलिंगनेस टू बाय, आप उसको खरीदने के लिए इच्छुक हैं, विलिंगनेस है आपकी कि आपको उसको खरीदना है। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, उस कमोडिटी की प्राइस भी आपके जहन में होती है, आप उसको अपने बजट से एलोकेट करते मैच करते हैं कि आपका बजट जो है वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर? और उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट है पीरियड ऑफ टाइम। फिर आप किस पीरियड ऑफ टाइम में कितने पीरियड ऑफ टाइम में अपने डिमांड को पूरा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली आपको वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तीन है
एलिमेंट जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो डिमांड के वो तीन है। पहला क्वांटिटी ऑफ द डिमांड, उसके बाद willingness to buy, and the third one is price of commodity. Clear? So ये सारी चीजें हो गई. Now come to the demand function. Here as you could see this one, डिमांड फंक्शन. ये डिमांड फंक्शन का मीनिंग और डिमांड तो हमने बता दिया आपको. अभी डिमांड फंक्शन का क्या इशू है. ये डिमांड फंक्शन जो है आपको इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखा. डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ये जो आपको कैटेगरी नजर आ रही है, ये डिमांड लिखे हैं यहाँ पे, फंक्शन लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकल टर्म्स में आप जनरली पढ़ते होंगे. जनरली आप पढ़ते होंगे कि डिमांड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. फंक्शन क्या है. फंक्शन मतलब किसका डिमांड, किसका फंक्शन है. यानी कि डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. किसी भी चीज़ की डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है. तो ये चीज़ें हैं पी एक्स, ये पी ओ, वाई, टी और ई. ये जो टर्म्स हैं, ये जो पी एक्स, पी ओ, वाई, टी ई, ये कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं. तो मैं आपको इनका एक्चुअल मीनिंग समझने की जरूरत है कि पी एक्स क्या है, पी ओ क्या है, वाई क्या है, टी क्या है, ई क्या है. क्लियर. सो ये सबसे पहले इसमें देखिए आप. सबसे पहले पी एक्स की हम बात करेंगे. तो पी एक्स का सिंपल मतलब ये है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी. आप जिसके डी एक्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया. डी एक्स का मतलब सिंपल डिमांड है. क्लियर. और उसके बाद ये जो पी एक्स है वो आपका है प्राइस. ठीक है. उस जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है. क्लियर. ये जो पी ओ लिखा हुआ है, इस पी ओ की जगह पे आप कुछ और भी यूज़ करते हैं. आप आपकी बुक्स वगैरह में आप देखेंगे कई जगहों पे पी आर लिखा हुआ है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है जनरली. इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अभी रिलेटेड गुड्स की डेफिनेशन अभी हम आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे. रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है. तो जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, वो सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे वो डिपेंड करता है वो होता है प्राइस उस कमोडिटी का. उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स के प्राइस से भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं वो उसका लेना देना है. इट गॉट अफेक्टेड बाय द रिलेटेड गुड्स. ठीक है. रिलेटेड गुड्स को आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. इट विल कम. उसके बाद वाई है आपका. वाई का मतलब होता है इनकम. क्लियर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम कितनी है. डेफिनेटली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. किसी भी चीज़ की हम डिमांड तभी करते हैं जब हमारे पास इनकम होती है. इनकम नहीं होगी तो हम डिमांड नहीं करेंगे. क्लियर. टी जो होता है, इस वाई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. वाई का मतलब है इनकम. क्लियर. उसके बाद टी जो होता है वो आपका होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ये आप किसी भी चीज़ की डिमांड कर तभी तो करते हैं जो चीज़ आपको पसंद आती है. अब कोई कह देगा कि ये सामान जाके ले लो तो आप उसकी पसंद से तो लेंगे नहीं. आप तो अपनी पसंद से लेंगे. आपको जो चीज़ें पसंद है, आपका टेस्ट क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग सामान खरीदेंगे. क्लियर. उसके बाद है फिर आपका जो ई है, इसका सिंपली मतलब है एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आज के टर्म्स में आप इसको देखते हैं. ये इस ई की मैं बात कर रहा हूँ. इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस. ठीक है. एक्सपेक्टेशंस. तो इस एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि जैसे अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पे देखा होगा कि जब सडनली किसी चीज़ की प्राइस हाई होने का अंदेशा होता है हमें, देन पीपल स्टार्ट बाइंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी मोर एंड मोर. ठीक है. लोग उस चीज़ की जो है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कि उसका कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है या कुछ और चेंज होने वाला है, तो लोग उस चीज़ की खरीद अपनी बढ़ा देते हैं. ठीक है. तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी डिपेंड करता है हमारे डिमांड पर कि हम उस कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं. हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड, कभी कभी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है वो हाई हो जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि ये एक्सपेक्ट हम करने लगते हैं कि कल को जाके उसका रेट जो है वो दुगना हो जाएगा, तो हम पहले ही खरीद लेते हैं वो चीज़ें. क्लियर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड.
So now the individual demand of function. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है? इंडिविजुअल डिमांड का सिंपल मतलब ये है कि जब आप डिमांड पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंडिविजुअल डिमांड भी पढ़नी है और मार्केट डिमांड भी पढ़नी है। तो इसमें कोई बहुत देयर इज नो एनी मच डिफरेंस इन both the concept, because simply individual, because demand is same in both the cases, whether you have to study about the individual demand or you have to study about the market demand. Concept of demand is same in both the cases. Just the very minor difference is that in first case you have to understand about the individual demand. इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल आदमी के डिमांड के बारे में आप पढ़ेंगे कि एक आदमी के बारे में से उसका शेड्यूल पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो मार्केट का मतलब क्या, पूरे मार्केट का एनालिसिस करेंगे। मार्केट मतलब उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे, उनकी डिमांड कैसी होती है, उसका डिमांड कब कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज how demand of commodity demanded by individual consumer in the market. It is related to its various determinants. ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये तो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ये इसको भी हम देखते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट्स है, इससे पहले ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज हाउ डिमांड ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट। मतलब कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कैसे कर रहा है, उसका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद उसका डिमांड कब कैसे बनेगा, एक इंडिविजुअल के डिमांड के केस में डिमांड कब कैसा होगा, इस चीज़ें आपको इसमें देखनी। ठीक है, एंड अगेन इट इज रिलेटेड विद दीज फैक्टर्स। ये जो है आपको क्लियर। तो ये फंक्शन है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये है जो हमने पीछे पढ़ा वो वही है। इसमें कोई देयर इज नो एनी चेंज इन दिस केस। ठीक है, देयर इज नो एनी चेंज, नो चेंज। क्लियर? So now come to the next slide. Uh, this is the factors affecting individual demand curve. Uh, Today we are not going into the depth of all these points. Next video I'll try to cover all these points in in a very sequential manner. But here I'm just going to give you the steps that what we are going to discuss in our next video. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं? यार एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो डिमांड होती है वो किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होती है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें उस पर असर डालती है कि वो डिमांड उसकी वो बढ़ाएगा या घटाएगा, क्या करेगा। इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या रीज़न होते हैं इसके? इसके फैक्टर्स बेसिकली जो सबसे पहले आपका पॉइंट आपको दिख रहा है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब सिंपली कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जिसकी भी डिमांड वो इंडिविजुअल कर रहा है, उसकी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की अपनी खुद की प्राइस कितनी है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड जो हमने अभी पीछे बात की, ये रिलेटेड गुड्स होते क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो ये रिलेटेड गुड्स की कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इस रिलेटेड गुड की कैटेगरी में दो चीज़ें आती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का सिंपल मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक दूसरी चीज के साथ रिप्लेस कर देना। जैसे आपने पीछे पढ़ा ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब, सब्स्टिट्यूट मतलब जब कोई एक चीज दूसरी चीज को रिप्लेस कर दे। ठीक है, यानी कि एक चीज जो हम यूज कर रहे हैं उसी के बराबर की, उसी के इक्विवेलेंट, उसी से बिल्कुल मिलती जुलती कोई दूसरी चीज भी हमारे पास हो, जिससे कि हमें ऑलमोस्ट दोनों से बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। जैसे कि टी और कॉफी ले लीजिए। ठीक है, लोग जैसे चाय पीते हैं वैसे कॉफ़ी भी पीते हैं। इनके पास चाय है तो चाय बना ली, नहीं है तो अगर कॉफ़ी है तो कॉफ़ी बना लेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है कि वो दोनों से सेम तरह का सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं पीपल। सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक के बिना दूसरी चीज़ जो है कि वो नहीं चल पाएगी। अगर एक चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है तो उसके साथ साथ हमें एक दूसरी चीज़ भी, एक ऐसी दूसरी चीज़ भी यूज़ करनी है जिसके बिना पहली वाली चीज़ जो है वो काम नहीं करेगी।
जैसे सिंपल है, पेट्रोल और कार। ठीक है, अगर कार को चलाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो ये कार और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कार नहीं रहेगी, गाड़ियां नहीं रहेगी तो पेट्रोल और डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर गाड़ियां हैं तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। और पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार और दूसरे जो भी व्हीकल्स हैं वो नहीं चल पाएंगे। क्लियर। द थर्ड पॉइंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। पीछे भी हमने जो डिटर्मिनेंट्स हमने देखे उसमें हमने देखा कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंडिविजुअल की इनकम पे भी बेस करती है। तो मेरी जितनी इनकम है मैं उसी के हिसाब से खर्च भी करूंगा, सामान भी खरीदूंगा। क्लियर। तो अब ये जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें दो अलग अलग गुड्स के बारे में पढ़ना होता है, जो दो कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी है नॉर्मल गुड्स की, दूसरी कैटेगरी है इंफीरियर गुड्स की। ठीक है, तो ये नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स का सिंपल मतलब ये है कि नॉर्मल गुड्स का मतलब ये है कि वो गुड्स या वो कमोडिटी जिनका हमारे इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उस कमोडिटी की, जिस कमोडिटी की मैं डिमांड बढ़ा दूँ उसे नॉर्मल गुड कहते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आप सपोज करिए कि भाई जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास आपकी इनकम में जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, आपकी तनख्वाह बढ़ गई, तो तनख्वाह बढ़ गई तो आप सपोज करिए कि पहले आप जो है वो एज यू कुड सी दैट कि पहले आप घर पे ही खाना खाते थे सपोज। ठीक है, तो अब आप जो है कि वो रेस्टोरेंट में जाना भी शुरू कर सकते हैं। तो आपने जो है वो डिमांड अपनी बढ़ा दी। या आप और इससे ज़्यादा सिंपल अगर समझ सकते हो तो नॉर्मल गुड्स में भी आप कपड़े ले लीजिए, क्लोथ्स ले लीजिए। आपकी जब इनकम बढ़ी तो आपने कपड़े भी ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिए। तो आपकी इनकम का बढ़ना और कपड़ों का और खरीदना डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो ये नॉर्मल गुड्स हैं, वो गुड्स जिनका आपके इनकम के बढ़ने और घटने से डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो उस कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, आपकी इनकम घटेगी तो उस कमोडिटी की डिमांड भी घट जाएगी। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और इंफीरियर गुड्स का आपके इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि वो कमोडिटीज जिन जिस जो कि आप जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो आप उन कमोडिटीज का यूज कम करना शुरू कर देंगे, उन्हें इंफीरियर गुड्स कहते हैं। इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में कई चीजें आती हैं, जैसे आपका कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज है। आपके ग्रैंड फादर्स फॉर फादर्स के टाइम पे वो लोग जो चीजें आज हम कंज्यूम करते हैं, व्हीट राइस, वो उस तरह के व्हीट राइस वो लोग कंज्यूम नहीं करते थे, या करते थे तो कम करते थे। दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दी कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स में जैसे आपका ज्वार है, बाजरा है, जो मोटा अनाज जिसे कहते हैं। तो आज के टाइम में वो ज्वार बाजरा का कंजम्पशन तो कोई करता नहीं है। क्लियर। तो अगर आज जिसके पास जो गांव देहात में जो लोग हैं, रिमोट एरियाज में, if they are consuming those edible items because they are having they are having a very low income। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि सपोज करिए कि वो लोग शहर में आ गए और उनकी नौकरी अच्छी लगी, तो अब उनकी इनकम भी अच्छी होगी। तो जब उनकी इनकम अच्छी होगी तो वो ज्वार और बाजरा नहीं खाएंगे, वो गेहूं और चावल खाएंगे, यूज करेंगे। क्योंकि ज्वार और बाजरा इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनकम के बढ़ने से उन कमोडिटीज का कंजम्पशन कम हो जाना, इसको हम इनडायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। और उसे इंफीरियर गुड्स के केस में ये होता है। ठीक है, सिंपली उस वही टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने आपसे डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, कि हम जैसी हमारी टेस्ट होती है, जैसी हमारी प्रेफरेंस होती है, वैसा ही हम डिमांड करते हैं अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेशंस का भी वही है, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर प्राइस कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड बढ़ाते घटाते हैं। क्लियर। सो दिस इज all about factors affecting individual demand. I hope it would be clear to you. In the next video I'll try to cover the different topics. Thank you.